Welcome to Standard Academy. This is our lecture number 2, class 10 mathematics. So today exercise is 1.1, question number 2, which is about factorization. So factorization is a very easy method and we have learned about it in class 9, that we have to multiply the first and last term, and the answer is divided into two pairs of multiplication, that if we add and subtract then we get the linear term, that x value. So first we have to multiply the first and last term. So if we multiply first and last term, here we have to multiply just coefficient, or you can multiply variable as well. So 1x square multiply with this 20, so we get minus 20x square. 1x square multiply by this minus 20, so we get minus 20x square. Now we have to multiply, or we have to now sum pairs of 20, that if we sum or subtract that pairs, so we have to get the answer which is equal to minus x. So you have to multiply all pairs of the 20, that's 1 multiplied by 20 which is equal to 20, and 2 multiplied by 10 which is equal to 20. 3 table is not possible, so we have to multiply 4 multiplied by 5 which is equal to 20. So from there, if we multiply this 4 with 5, we get 20. If I add these two numbers, then we get minus x as well, because we have to subtract the smaller quantity from the larger one, and the sign always stand with the larger one. So here's 4 multiplied by 5 which is minus 20. If I put x here, so x multiplied by x which is equal to x here, and then if I subtract or add them, minus 5x plus 4x which is equal to minus x. So I need minus x, and also I need minus 20x here. So from here these two pair are possible, that if we multiply 4 multiply with the 5, and then we get minus 20x here, and if we add them, minus 5x plus 4x, we get minus x. So that are the required pairs for the 20 minus 20x here. So let me put here 1x here, or simply x here, which is equal to plus 4x, and then minus 5x minus 20 which is equal to 0. So here x term is available in both terms, so here we can take x as common one, so x is common here, x, and then 4 is the remaining term, so bracket close, and now here 5 multiplicative of 5 is common, so here taking 5 x, and then minus minus plus 5 4s are 20, and then we get x plus 4, and then writing the common one and then the other which are not commons in the cross, so x minus 5 and then x plus 4, these two are equal, so we have to let either x minus 5 is equal to 0 or x plus 4 which is equal to 0. So here x is equal to 5 or x is equal to minus 4. So these are the required solution, 5 minus 4. Now again आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसको आपने फैक्टराइज करना है. फैक्टराइजेशन किसकी करनी है? x स्क्वायर माइनस x माइनस 20. आपको एक ऐसा पेयर रिक्वायर्ड है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है 1x स्क्वायर और 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -20 विच इज इक्वल टू -20x स्क्वायर। ये मैंने मल्टीप्लाई करके आप लोगों को दिखा दिया। सो अब मुझे ऐसा पेयर लेना है, तो आपने 20 की वो तमाम पेयर्स पर का टेबल पढ़ना है या लिखने साइड में, ताकि आप लोगों को उनको देखें कि अगर उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें सो आपके पास जो सेंटर वाला टर्म है जो लीनियर टर्म कहलाती है x की वो आ जाए। सो मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 20 से, सो 20x स्क्वायर हो गया। फिर अब मैं 20 की टेबल पढ़ रहा हूँ, 20 की टेबल मैंने पढ़े तो 1 से भी किया, 2 से किया, 4 से किया, और 4 और 5 से जब किया तो मैंने कहा कि यहाँ पे -x चाहिए। अगर मैं 5 में से 4 निकाल लूं मेरे पास 1 बचता है, तो यहाँ भी 1 ही रिक्वायर्ड है। लेकिन अब साइन आपने अगर यहाँ माइनस रिक्वायर्ड हो तो आपने बड़ी टर्म के साथ माइनस रखना होगा, और अगर यहाँ प्लस रिक्वायर्ड हो तो आपने बड़ी टर्म के साथ प्लस रखना होगा। तो यहाँ पे माइनस रिक्वायर्ड था, पर समटाइम ऐसा भी होता है कि दोनों पेयर्स हमारे पास माइनस के रखे जाते हैं क्योंकि यहाँ माइनस होता है। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे +4 छोटी टर्म ली और -5 बड़ी टर्म ली। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 4 5 are 20 और x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो आखिरी वाली टर्म जो हमने मल्टीप्लाई की थी वो हमारे पास आ गई है। अब इन दोनों टर्म में आप देखिए कॉमन क्या है x, तो मैंने दोनों टर्म में से x कॉमन ले लिया। पीछे क्या रहेगा, x की पावर 2 है, x की पावर 2 का मतलब है x into x, एक x आपने कॉमन ले लिया, पीछे रह जाएगा एक x। सो वो 1x आप यहाँ पुट करेंगे और ये वाला x भी कॉमन आ जाएगा, तो +4 माइनस, अब यहाँ से -5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 का टेबल अगर पढ़े तो 5 4 से 20 होता है, -5 कॉमन लिया तो x +4 विच इज इक्वल टू, अब जो कॉमन ब्रास हैं इनको एक आप ब्रा में लिखेंगे और बाकी जो हैं उनको अलग में लिखेंगे। सो x +4 और ये x -5 दो पेयर बन गए सॉल्यूशंस के। तो आप कह रहे हैं कि आइदर x -5 0 है या तो हमारे पास x +4 0 है। सो आपने x -5 को 0 पुट किया तो x = 5 और x +4 वो आपके पास क्या हो जाएगा, x = -4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है 5 - 4। क्वेश्चन नंबर 2 है 3y² which is equal to y into y minus 5। सो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y² एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5y minus 5y, शिफ्ट करेंगे टर्म्स को एक साइड पे तो -y² और ये -5 इधर प्लस हो जाएगा। अब 3y में से y² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y² प्लस 5y, इन दोनों में हमें कॉमन y मिल रहा है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक है। सो आपके पास क्या आ गया, y कॉमन आ गया तो 2y + 5 विच इज इक्वल टू 0। अब हम कहते हैं कि या तो y इक्वल टू 0 है या ये वाला पेयर जो है इक्वल टू 0, आइदर y इज इक्वल टू 0 और 2y + 5 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0, अब 2y + 5 इज इक्वल टू 0, 5 को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे -5, हमें 2y नहीं चाहिए, हमें तो y चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2 दोनों साइड में आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -5/2 विच इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5/2। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 - 32x which is equal to 17x²। अब 17x² को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो -17x² हो जाएगा। अब क्वेश्चन वाली है 4 - 32x - 17x²। इस क्वेश्चन को इसी तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि नहीं मैंने इसको अरेंज करना है तो इसको अरेंज भी किया जा सकता है। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले 17x² की टर्म पहले, उसके बाद x की टर्म लिखें और फिर आप कांस्टेंट टर्म लिखें। अब अगर कोई स्टूडेंट इसमें माइनस के साइन कॉमन लेना चाहता है तो माइनस के साइन भी कॉमन लिए जा सकते हैं। सो माइनस के साइन अगर कॉमन लेंगे, देखिए कॉमन नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव साइन अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास 32x - 4 which is equal to 0। अब अगर 17 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 17 तो ये 68 बनता है।
अब 68 ऐसा टेबल पढ़ना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 आए -68 because 4 multiplied by this minus 17 multiplied by this minus 4 which is equal to -68. So आपको ऐसे पेयर लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें 32 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो -68 आए. So हमारे पास ऐसे दो पेयर्स हैं 17x square plus 34 ले लें अगर हम 34x और minus 2x minus 4 which is equal to 0. So ये वो रिक्वायर्ड पेयर है. अगर आप इनको ऐड करें 34 minus 2x करेंगे तो plus 32 आएगा. और जब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमें प्लस चाहिए होगा तो बड़ी टर्म के साथ प्लस लेना है और अगर माइनस चाहिए हो तो बड़ी टर्म के साथ माइनस लेते हैं. यहाँ प्लस 32 चाहिए था जिसकी वजह से मैंने 34 के साथ प्लस लिया है. सो यहाँ से आगे स्टूडेंट आप लोगों ने को कैरी करना है. अब मैं क्वेश्चन 4 की तरफ आता हूँ. क्वेश्चन 4 में है x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 152. आपने अपने कैलकुलेटर ग्रैब करना है और कैलकुलेटर से आपने डिफरेंट पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 1 मल्टीप्लाई बाय 52. सो आप मल्टीप्लाई करें फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय सम जो भी आंसर आता जाएगा आपने नोट करना है अपने रफ साइड में. उसके बाद आप लोगों को जो रिक्वायर्ड पेयर्स मिल जाए तो आप लोगों ने उसको फिट कर देना है और कॉमन लेना है और सॉल्यूशन निकालने हैं. सो यहाँ पे जो कॉमन पेयर है वो है -19x प्लस 8x. अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 152 आएगा. आप देखें दोबारा यहाँ पे -11 चाहिए था तो आपने बड़ी टर्म के साथ माइनस रखा और छोटी वाली टर्म के साथ प्लस रखा. अब x मल्टीप्लाई बाय दिस x स्क्वायर 152 19 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो हमारे पास क्या आएगा 152 आएगा प्लस माइनस 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 152 आएगा और जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास -11 आएगा. सो हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्म थी जो हमने बनानी थी. इसके बाद आपने कॉमन लेने हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. तो इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट आप लोगों ने आगे को कैरी करना है. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 x plus 1 और x plus x और x plus 1 which is equal to 25 by 12. so यहाँ एलसीएम की टर्म्स आ रही हैं तो मैंने कहा था कि जब भी एलसीएम की टर्म्स आएंगी तो मैं उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया करूंगा ना कि एलसीएम लिया करूंगा. सो मुझे एलसीएम 12x और x plus 1 तीनों डिफरेंट टर्म है तो इन तीनों टर्म्स को ले लेना है और पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है. 12x x plus 1 से मैंने पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया है. हर टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है. दिस मल्टीप्लाई विद दिस ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई की और ये टर्म फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दी. अब जो कैंसिल आउट होते हैं सेम टर्म्स उनको कैंसिल करना है. x विद x कैंसिल हो जाएगा फिर x plus 1 से कैंसिल हो जाएगा 12 से कैंसिल हो जाएगा. जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 12 मल्टीप्लाई बाय x plus 1 और दिस x plus 1 फिर उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय x और ये x फिर उसके बाद 25 मल्टीप्लाई बाय x 25 मल्टीप्लाई बाय दिस x एंड देन x plus 1. सो अब x plus 1 पावर 1 पावर ऐड अप हो जाएंगी तो x plus 1 स्क्वायर बन जाएगा. और यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x पावर बेसिस सेम हो मल्टीप्लिकेशन करके सो पावर ऐड हो जाती है तो 1 पावर और दूसरी भी 1 पावर है तो 1 plus 1 x raised to power 2 and then multiply by this 25 ones are 25 and then x multiply by x square and then 25x. सो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ अब हम स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे. सो यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया. फर्स्ट टर्म है मेरे पास x और सेकंड टर्म है 1. ऐसा फार्मूला पहले भी ओपन कर चुके हैं. x square plus 2 into first term which is x and then multiply by second term which is equal to 1 and plus second term square. सो जो बाकी टर्म्स हैं इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें साथ साथ ताकि सिंपलीफाई हो. 12x स्क्वायर एंड देन 25x स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे -25x और 25x को भी शिफ्ट करेंगे तो -25x हो जाएगा. अब यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनको सिंपलीफाई करेंगे. x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 which is equal to 2x and then 1 स्क्वायर is equal to 1. 1 की जितनी भी पावर ले रहे हैं वो ऑलवेज 1 ही रहेगा. ये आप लोगों ने याद रखना है. सो यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं सिंपलीफाई करने के लिए 25 बड़ी टर्म के साथ माइनस के साइन है 25x स्क्वायर और छोटी टर्म के साथ प्लस के
तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालेंगे साइन बड़ी टर्म के, तो 25 में से 12 चला जाएगा, निकाल लेंगे हम, तो मेरे पास बचेगा ये -13x² और यहाँ पे आपके पास -25x which is equal to 0. So this 12 multiplied with this bracket, तो आपके पास क्या हो जाएगा 12x² and then 12 2s are 24x and then 12 multiplied by 1 which is equal to 12. -13x² -25 ये सेम टर्म है, ये ऐसे ही रिपीट हो जाएगी। सो अब सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करना है, सिमिलर टर्म 12x² है, फिर -13x² है, फिर +25x, फिर -25x और देन कांस्टेंट टर्म 12। सो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालेंगे, साइन बड़ी टर्म के 13 में से 12 -x², 25 में से 24, तो आपके पास -x आएगा, 1 लिखते नहीं है, अगर आप x लिखें या -12x लिखें तो कोई इशू नहीं है, और +12 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है, अगर इसको ऐसे ही रहने दें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें से कॉमन ले लें तो ज्यादा अच्छा है। सो x कॉमन, नेगेटिव साइन कॉमन लीजिए, x² ये माइनस प्लस का हो गया और ये भी माइनस प्लस का हो गया, और जिसके साथ प्लस के साइन है उसके माइनस हो गए। अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1s are 12x², ऐसे टर्म जिनको मल्टीप्लाई करें 12 ऐसे दो पेयर लेने हैं और उनको प्लस माइनस करें तो प्लस x आना चाहिए, तो 4 3s are 12 होता है, और बड़ी टर्म के साथ प्लस क्यों लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालूंगा तो +x² और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। सो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, सो x कॉमन लेंगे तो x +4 हो जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है तो x +4। अब जो कॉमन ब्रैकेट है उनको एक साथ लिखना है और जो कॉमन नहीं है उनको एक साथ, सो x -3 हो जाएगा और ये एक साथ आ जाएगा x +4। अब हम ये कह सकते हैं दो पेयर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 होती है, सो हम कह सकते हैं या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, ये तीन कंडीशन हो सकती है, तो हम कहते हैं या तो ये 0 है या ये 0 है। सो x -3 is equal to which is equal to x3 and then x +4 is equal to 0 which is equal to x -4। सो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 3 - 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, 2/x/9 is equal to 1/x/3 minus 1/x/4। सो एलसीएम्स की टर्म्स दोबारा x -9 x -3 x -4 सारी टर्म्स डिफरेंस हैं, तो इन तमाम टर्म्स को आपने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 by 1 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 और 9 के साथ, फिर देन 1/3 x -3 के साथ, फिर 1/x -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब सिमिलर टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म है उनको अरेंज करना है, 2 into x -3 x -4 and then x -9 x -4, फिर आपके पास x -9 x -3 ये टर्म बनेंगे, और जब आप इनको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 into दिस टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म, और फिर ये सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर -3 इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह आपके पास x इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह हमारे पास माइनस है तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, यहाँ पे x इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 9 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। सिंपलीफिकेशन x मल्टीप्लाई बाय x -4x 3 multiplied by x -3x minus plus 3 4s are 12 and then x multiplied by x square -4x minus 9x minus plus 9 4s are 36 and then minus x multiplied by x and then x multiplied by minus 3x 9 multiplied by x minus 9x minus plus 9 3s are 27। ये वो टर्म्स थी जिनको मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप मजीद सिंपलीफिकेशन करनी है, -4 -3 दोनों साइन दोनों माइनस की टर्म्स हैं तो ऐड होंगी, साइन माइनस के आएंगे तो -3 -4 -7 बन जाएगा x स्क्वायर -7 x plus 12। सो x स्क्वायर -7x plus 12। अब अगली टर्म को सिंपलीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस दोनों टर्म दोबारा माइनस की हैं तो -4x -9 -13 हो जाएगा। सो आप लिखा x स्क्वायर -13 plus 36 एंड देन माइनस ऐसे बाहर आने दें, अंदर ब्रैकेट सिंपलीफाई करें। सो x स्क्वायर -3 -9 -12 plus 27। सो यहाँ पे आपने लिख दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 2 मल्टीप्लाई बाय 12 which is equal to 24। ये सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा -13 इधर आके +13 हो जाएगा और ये
और ये वाली टर्म पूरी ब्रैकेट के साथ इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो जब ब्रैकेट सारी इस साइड पे आएगी तो प्लस हो जाएगी, सो व्हिच इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज नहीं बची तो हम वहां पे 0 लिख देते हैं। अब मजीद जो बाहर टर्म्स है वो सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं और साथ ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं, सो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फिर माइनस 14 प्लस 13x, सिमिलर टर्म को इकट्ठा कर रहा हूं 24 माइनस 36। अब बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालेंगे, साइन बड़ी टर्म के तो 2x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर और यहां भी क्या x स्क्वायर है तो ये दोनों कंबाइन कर लूंगा और माइनस 14 प्लस 13 माइनस x और ये माइनस 12, तो यहां पे आप कंबाइन करेंगे 24 माइनस तो ये आपके पास 36 तो आपके पास माइनस 12 आएगा और ये प्लस 27, सिमिलर टर्म को कंबाइन किया है। अब ऐड अप करें, सब्ट्रैक्ट करें, जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको सब्ट्रैक्ट कर लें, जो ऐड हो रही है वो ऐड कर लें, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहां पे माइनस 12 माइनस x माइनस 13x और 27 में से माइनस 12 निकालेंगे साइन बड़ी टर्म के विच इज इक्वल टू 15। यहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को कि आप फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 30 आना चाहिए। अब पेयर ऐसे ले रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 30 आए, सो अगर हम 15 टूजा लेते हैं तो माइनस 30 आएगा, हमें प्लस 30 चाहिए तो माइनस 10 माइनस 3 लेना है जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 जा 30 हो जाएगा। सो मैंने ये पेयर लिए माइनस 10 माइनस 3, सो विच इज इक्वल टू, अब यहां से कॉमन टर्म्स जो आ रही है वो कॉमन ले लें, 2x कॉमन है तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा x और यहाँ 5 2 जा 10, सो माइनस 5 एंड देन माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, सो कॉमन टर्म जो कॉमन ब्रास है उनको एक टाइम लिखेंगे और जो बाकी है उनको एक दफा लिखेंगे, सो 2x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 5 which is equal to 0, 2x माइनस 3 ये 0 है या तो फिर x माइनस 5 0 है, तो अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो 2x is equal to 3 हो जाएगा, हमें 2x नहीं चाहिए, x चाहिए, then divided by 2 on both side, so आपके पास divided by 2 करेंगे तो x 3 by 2 आएगा और x is equal to 5, so x के सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे 3 by 2 और x is equal to 5। ये वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था जो हमने फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। पढ़ने लिखने और सीखने को अमल जारी रखना है और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सीख सकें। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।